So what do you think will the future be for any FMCG brand after 5 years? मानो या ना मानो, Correct. क्विक कॉमर्स इज कवरिंग ओनली 4% ऑफ द FMCG मार्केट, और वही 4% कवर करते करते उन्होंने 2.5 लाख लोकल स्टोर बंद करवा दिए। 2018 में जो पूरे फूड मार्केट था जितना भी इंडिया में, ओनली 3% वर कमिंग फ्रॉम ऑनलाइन, एंड इफ टुडे इफ यू सी दैट डेटा इज 30 to 40%। If we go with India 2, India 3 or Tier 3 or Tier 2 localities, cities or places, यहाँ पे किराना स्टोर का लॉजिक चलता है, राइट? दैट आई एम हैविंग अ किराना स्टोर, जो भी ग्रोसरीज और एवरीथिंग। तो जब क्विक कॉमर्स एंटर करता है मार्केट में, तो रेस्टोरेंट्स तो क्या एक प्लेटफॉर्म देती है, क्विक कॉमर्स तो पूरी इंडस्ट्री को ही खा जाता है। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ किराना स्टोर्स आफ्टर 5 years? व्हाट डू यू थिंक? My God. Quick commerce is really a great platform for the customer. Yes. But if it comes to the merchant part, the quick commerce is the villain. If it comes to the Indian retail backbone, it's the biggest villain you can ever imagine. पहले तो एक हिसाब करो कि फूड ऐप आपसे कितना ले जा रहा है। उनको पता लगाना है कि भी एवरेज ऑर्डर कितने नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स मुझे फूड ऐप से आते हैं, एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम कितना है, मैं कितना % कमीशन मेरे से चार्ज करते हैं, एंड व्हाट्स द नंबर एनुअली आई एम गेटिंग इट। वैसे जो 30% का मेरा है, 10 से 12 लाख डाल रहा हूँ, और अगर मैं ईयरली देखूँ, अगर मैं खुद का सैस या एरिया कार्ड का सैस यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को ईयरली कितना पड़ेगा? 25,000 बस। दैट्स इट। आज से 5 साल बाद ये एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म है जो क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी, वो सब है, कि वो रिप्लेस हो जाएंगे थ्रू। And there is an interesting thing I'll tell you with the food app, and people are really taking lightly with the food apps. The restaurant owners, उनको ये नहीं पता कि साल में वो एक्चुअली कितना वो फूड ऐप को दे रहे हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स, they really don't know the numbers. मैंने कई रेस्टोरेंट ओनर से बात की है, मैंने बोला कि भी आप जोमेटो को साल में कितना कमीशन देते हो? Hello and welcome to Beyond the Noise. Today we are having Nirav Bhai on the show. So Nirav Bhai, today we are going to discuss multiple things. As we all know that currently many people have submerged into the vertical of quick commerce, food deliveries, and we all think that it is currently acquiring a whole big market. But as per the stats which I researched and as per the conversation which we had before the podcast, we found some very big data which is currently not coming into the market. That we think that Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, Instamart, all are profitable. People are pretty convenient ordering from there. But the food chain, the restaurateurs, the cafe owners, or the kirana stores, they are facing a very big backslash, which we do not know. That, you know, the margins which they are making of around 10 to 15%, but they are giving 20 to 30% margins to the food delivery apps. So today, as you discovered, I do not want to brand that what are we talking, but let the conversation flow, that you discovered a very important market gap in this saturated space, but still it's one of the biggest thing which, you know, a kirana store or a restaurateur needs to hear from you. So if we start, my first question is that I discussed that what are we going to discuss in the podcast and what's the topic, but 20 to 30% is the cut which food delivery apps are taking from restaurants. They do, yes. And if we compare how restaurant work, is that, you know, they are having around 10 to 15 or maximum 20% marginal cut which they are getting. Yes. So why are they investing more fund on the food delivery apps compared to they taking the fund to themselves? They do, absolutely. I'm agreeing with that. Because the thing is, like, I'll go first because your question was a little bit bigger, so I'll go in the segment wise. So the market is so huge, I will say, because first is a retail, first is a food. I'll start with the food question first. The restaurant are not making much enough when the order comes from the food app. They know that. Correct. They know that. But they have to, because they don't have any choice. What if they turn off the button of online? What if they are not on the marketplace? Where they'll go? Where the people will order from? तो उनके पास अभी कोई चॉइस ही नहीं है. So they have to. Even they hate the food apps, but they will stick on them. क्योंकि उनको अभी लगता है कि भी उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है. That's a myth now, but yes. Second part, they do charge 20 to 25 to 30%, but like
if you calculate at the end of the year, it will come out to even more than that. आपका CA बोलेगा कि actually 20-35% नहीं है, 35-40 जा रहा है, 40 तक जाता है. 40 तक जाता है. If you calculate the marketing spend and everything, it goes to 40%. और मेरा क्वेश्चन ये है, अगर if you are spending on the marketing, would you be able to hike your price by 40%? Of course no. बिकॉज अगर मान लो आपकी प्रोडक्ट ए है, उस पर आपने 40% प्राइस हाइक कर दिया, ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट विल गो आउट ऑफ द सेगमेंट. अगर मान लो एक भाजी पाव है तो उसकी एक प्राइस रेंज रहती है. अगर भाजी पाव चली जाएगी एक हाई फाइन जो 200 की चीज है वो 400 या 500-600 में चली जाएगी, देन ऑफ कोर्स इट्स चेंजिंग द कैटेगरी, वो बहुत ही प्रीमियम हो जा रही है. सो फॉर दैट इट डजेंट मेक सेंस. तो क्या करते हैं रेस्टोरेंट ओनर, वहाँ पे उनका मार्जिनल कट कम रख देते हैं कि भाई ओके कोई बात नहीं, मार्केटिंग हम कर रहे हैं, फूड ऐप पे कर रहे हैं, 30% में से मैं 10% मैं बेयर कर लूँगा और बाकी के 20% हाइक कर लेता हूँ. एंड देयर इज़ ए इंटरेस्टिंग थिंग आई विल टेल यू विद द फूड ऐप, what's going on wrong, and people are really taking lightly with the food apps, the restaurant owners. उनको ये नहीं पता कि साल में वो एक्चुअली कितना वो रेस्टोरेंट को दे रहे, फूड ऐप को दे रहे रेस्टोरेंट ओनर्स. दे रियली डोंट नो द नंबर्स. मैंने कई रेस्टोरेंट ओनर से बात की है, मैंने बोला कि भाई आप जोमेटो को साल में कितना कमीशन देते हो? नॉट जोमेटो को, हाँ, यानी आपके कस्टमर फूड डिलीवरी ऐप आपसे कितना ले जाती है? हाँ, करीबन 30%. व्हाट्स द टोटल नंबर? They know the sales number. They don't know the commission that they are getting. Like, they are giving away. So, yeah, correct. So the number is so huge than even they can imagine. वो उनको नहीं पता. So, and also the thing is they always go with the safer side. ज़्यादातर रेस्टोरेंट आप देखोगे तो आप क्या देखोगे कि भी किसी की फ्रेंचाइजी ली हुई है, कोई अपने उस पर खड़ी कर रहा है, कोई ज़्यादातर फ्रेंचाइजी ली हुई है, कोई QSR है, कोई फाइन डाइन है, कोई फुल फ्लेज रेस्टोरेंट है. देयर आर सेगमेंट ऑफ रेस्टोरेंट्स. अभी फूड ऐप्स के अलावा उनके पास ऑप्शन ही नहीं है ऑनलाइन. इफ आई टेक यू टू द 2018, आई गिव यू इंटरेस्टिंग डेटा हियर. 2018 में जो पूरे फूड मार्केट था, जितना भी इंडिया में जितने भी पीपल आर वर स्पेंडिंग ऑन द फूड, only 3% were coming from online. Only 3%. Only 3% were coming from online food apps. 3 to 4%. I'm talking about 2018. And if today, if you see that data, it's 30 to 40%. So it's having a spike. It is having a spike. Straight spike. तो अभी रेस्टोरेंट ओनर के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, मार्केट प्लेस पे तो रहना ही रहना है. क्योंकि 30-40% जो ऑनलाइन ऑर्डर्स जो है सारे वहाँ से, it's coming from the food apps. Correct. And there are only 2 giants that this playing the game around. So, I mean, don't you think that from 2018 the start was 3%? Yes. And if you tell that अगर मैं एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ तो मेरी एक नेसेसिटी हो जाती है दैट मेरे को कंपलसरी फूड डिलीवरी एप्स के ऊपर मेरी रेस्टोरेंट को होस्ट करनी पड़ेगी. वाई द पॉइंट कम्स दैट वहाँ पे ट्रैफिक है, वहाँ पे विजिबिलिटी है, और वहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ तो मेरा रैंकिंग ज़्यादा आ रहा है. Yes. तो रेस्टोरेंट का कोई ऑर्गेनिक फॉलोइंग ही नहीं हुआ. तो अगर स्विगी कल बंद हो गया तो रेस्टोरेंट का फॉलोइंग भी बंद हो गया. Yeah, they will not So have. as per my research, they are not having any loyal digital following which they should have if they are having something of their own or a SaaS. So what's your take on that? Yes, Dhruv, I'll completely agree on that. सारे रेस्टोरेंट है. If I'll put everyone into one basket and if I give a number 100, 100 में से 90% के पास उनका खुद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ही नहीं है ऑनलाइन. Correct. They rely on the food apps, and that's the reason the food apps knows about it, and that's the reason they manipulate, and they know that they're not gonna go anywhere. So if tomorrow I say that मैं 5% बढ़ा दूंगा तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है देने के अलावा. Absolutely, you don't have the choice. You don't have any option to go. क्योंकि आप ऐप बनाओगे नहीं, यू आर अ रेस्टोरेंट ओनर, आप ऐप में कहाँ खर्चा करोगे? आप ऐप तो बना ली, वेबसाइट बना ली, बहुत लोगों ने वेबसाइट बना ली सिर्फ मेन्यू, जब एक डिजिटल मेन्यू कार्ड की वजह से, लाइक इट्स जस्ट अ डिजिटल मेन्यू कार्ड, बट देयर इज अ लैक ऑफ इंजन बिहाइंड इट. तो उनके पास अभी कोई चॉइस ही नहीं रहा. एंड व्हाट दे टुक इट लाइटली, व्हाट बिगेस्ट मिस्टेक द रेस्टोरेंट ओनर डिड, they never build one from the day one.
दे आर स्टिल रिलाइंग ऑन द फूड एप्स. अगर आप उनसे बात करो तो अभी भी वही बोल रहे हैं कि भाई अच्छा आ रहे हैं ना ऑर्डर, उसमें क्या है, वो ला रहा है ना. बट इफ यू आस्क, आपने कभी प्लान किया है फ्यूचर में आपकी खुद की एक सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑनलाइन की होनी चाहिए कि डायरेक्ट ऑर्डर आप पे आए और आप डिलीवरी करो? क्या आपने कुछ प्लान किया है? दे वुड नॉट हैव द आंसर. दे विल से मैं क्यों करूँ? एंड ऑफ कोर्स दे आर राइट फ्रॉम देयर एंड कि भाई मैं राइडर क्यों रखूँ? मैं राइडर रखूँगा तो it's tough to handle with the delivery riders and everything. So I get that point as well. But किसी ने, there are very few segment of restaurant who actually made their distribution जो फूड ऐप से हट साइड में होके उनका प्राइवेट एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, बाकी नहीं बना रहे. एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दे आर डूइंग. Correct. So, if we take an example that when the restaurant is having their own SaaS, what's the difference which they can give? For example, आज मैं जो चीज़ 200 की बेच रहा हूँ, प्लेटफॉर्म फी 30% है, इसलिए मैं उसको स्पाइक करके 300 350 या हायर बाउंड में 400 की बेच सकता हूँ. बट अगर मेरा खुद का SaaS है जहाँ पे मेरे जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको मैं TG रख रहा हूँ, ऑफ कोर्स, तो मैं कितना बचा रहा हूँ? Oh, you are lot. Let's say, for example, I'll give you a classic example on this point. Restaurant owner are averagely giving away between 10 to 15 lakhs. I'm talking about very conservative value here. बहुत ज़्यादा नंबर है. फिर भी मैं बता रहा हूँ 10 से 15 लाख रुपए फूड ऐप एक एवरेज रेस्टोरेंट से ले जा रहा है ईयरली. 15 लाख रुपए, yes, and calculate it. ट्रस्ट मी, इट्स रियली अमेजिंग. आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए कि भाई मेरे 20 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं. अगर 700 का एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम है, वैल्यू है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, और उसको मैं 30% कमीशन से कैलकुलेट करता हूँ तो साल के कितने होते हैं? जस्ट कैलकुलेट इट. इट वुड बी 15 लाख रुपीज समवेयर अराउंड. बट इट्स अ ह्यूज नंबर दैट दे आर जस्ट पुटिंग इट ऑन द ब्लाइंड स्पॉट. वो नहीं रखना चाहिए उन्हें. They should have their direct pipeline to sell it to the customer. और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट प्लेस पे ना रहो, फूड ऐप पे ना रहो. You should be on that. Just divert your customer from the marketplace towards your own private. But I don't think we are having, restaurants have the data. I mean, for example, आज मैं एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहा हूँ थ्रू फूड डिलीवरी ऐप, तो उसके पास मेरा डेटा तो नहीं जाएगा ना? नहीं. तो अगर मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, हम फूड डिलीवरी ऐप पे क्यों है? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी. सो आई एम स्टार्टिंग माय ओन SaaS. यस, मेरे को उतना ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा ना, तो उसका फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स आपको ट्रैफिक पहले फेज में नहीं मिलेगा फॉर श्योर. अगर आप आपकी खुद की एक ऑनलाइन सेगमेंट चालू कर रहे हैं, यू विल नॉट गेट द ट्रैफिक ऑन द डे वन फॉर श्योर. बट एटलीस्ट यू आर नॉट गिविंग द फुल कंट्रोल. आपका फ्यूचर पूरा आपने फूड ऐप पे नहीं दिया. करेक्ट. आपने डे वन से इतना तो चालू कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, यहाँ से 100 ऑर्डर आ रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ वो 20 या 30 मेरे प्राइवेट पे आए. आई एम नॉट सेइंग द 100 वुड कम, नो, फॉर श्योर नॉट, बट एटलीस्ट 30-40 यू कैन डाइवर्ट इट ऑन योर ओन पाइपलाइन, ऑन योर ओन द सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन. यानी आप आपकी खुद की एक ऑनलाइन सिस्टम बनाइए, उस पर डाइवर्ट कीजिए मार्केट प्लेस से, and convert those customer to your own loyal customers. Correct. क्योंकि वहाँ पे लॉयल्टी है. और दूसरा कस्टमर को भी तो फायदा है, उसको सस्ते में पड़ रहा है ना. He is getting cheaper from them. On the food app, the customer is ordering for 1,000 rupees. If he'll order directly to the restaurant, he will get it for 700 rupees. Correct. So he's saving 300 rupees. It's a win-win. It's a win-win situation for sure. It does takes time. I'm not saying that it's gonna just happen on day one like this. No, for sure not. What would happen is when the order comes from the marketplace, you have to divert anyhow to your own sales pipeline by throwing the cards, discount coupon, QR code, throwing discount. If you'll order here, you will get 25% cheaper. Why not? Customer would do That's that. the basic strategy. Exactly. They should try something. At least the customer who are coming in the restaurant, they should convert them कि भाई ये मेरा QR कोड है, आप डाउनलोड कीजिए, ये कीजिए, यहाँ पे चलाइए, हमारी प्राइवेट चैनल है, तो वहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा और यू विल गेट द डिलीवरी.
जस्ट ऑर्डर, आपको कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर कीपिंग योर एंटायर फ्यूचर इन द हैंड ऑफ फूड एप्स। और फिर आप कंप्लेन ही करते रह जाओगे कि भाई ये मैनिपुलेट करते हैं, ये कमीशन बढ़ा दिया, मेरी विजिबिलिटी कम कर दी, अभी तो मार्केटिंग में पैसे डालते हैं तो एट द एंड हम जब कैलकुलेट और अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ आता ही नहीं है, फिर भी करना पड़ रहा है। ऑफकोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ स्टेप ही तो नहीं लिया। Correct. So it will take time, but of course, at least you are moving a step towards your future. So it's a compounding thing which will give you results after some After point some of time, but it will. It does. It does. So restaurants, for restaurants, it's fine. If we go with India 2, India 3, or tier 3 or tier 2 localities, cities or places, जहाँ पे किराना स्टोर का लॉजिक चलता है, राइट, दैट आई एम हैविंग अ किराना स्टोर, आई गिव, मतलब जो भी ग्रोसरीज और एवरीथिंग। तो जब क्विक कॉमर्स एंटर करता है मार्केट में, तो रेस्टोरेंट्स तो क्या एक प्लेटफॉर्म देती है, क्विक कॉमर्स तो पूरी इंडस्ट्री को ही खा जाता है। Oh yes. दैट आई एम हैविंग द होल द होल सेट ऑफ थिंग्स, मेरे को कहीं से लेना नहीं है, मेरे पास से मैं लेके आपको दे रहा हूँ। Oh yes. सो बीच में वेंडर तो आता ही नहीं है, सो टोटल लॉस। Yes. So what's the storyline for them? Because it is not, giving anyone an opportunity, but it is acquiring anyone's opportunity, to be frank and, to be straight. So what will be the future of Kirana stores after 5 years? What do you think? My God. This is the hot question that I really got it. And I would love to answer it. I'll try my best to give the answer in Hindi. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, but still I'll try my best. Okay. Quick commerce is really a great platform for the customer. Yes. It's very addictive. For a customer, you just search for your products that you want it. It will come to your door in 10 or 15 minutes. Done. So as a customer point of view, it's perfect. And if I'm getting at the same rate, that if I'll go to the मेरा 20 मिनट बिगाड़ूंगा, 30 मिनट बिगाड़ के जाऊंगा कोई स्टोर पे, बोलूँगा भाई मुझे ये चाहिए, देन कभी कभार नहीं भी मिलता, वो स्टोर पे जाते हो, देन यू वॉन्ट गेट इट. So for a customer, it's a win-win situation. Like it's very addictive for the customer point of view. But if it comes to the merchant part, the quick commerce is the villain. If it comes to the Indian retail backbone, quick commerce is the villain. It's the biggest villain you can ever imagine. I'm gonna go very careful here because really, I'm just gonna give you the numbers. क्विक कॉमर्स का पूरा सेल्स जो है, आप जितने भी, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्विक कॉमर्स स्टार्ट हुआ कुछ 2020. Before 2020, 2019, it was not, the concept was not that powerful. Quick commerce is covering only 4% of the FMCG market currently. Only 4%? Only 4% of the entire FMCG market is covered by the quick commerce. और वही 4% कवर करते करते उन्होंने 2.5 लाख लोकल स्टोर बंद करवा दिए. So just imagine the impact of the quick commerce would come on the local stores after certain years when their number would grow. Quick commerce year over year वो 100% ग्रो करा है, एटलीस्ट 80%. क्या मैं अगर लोकल स्टोर कोई भी यहाँ पे स्टोर को मैं पूछूंगा, is your sales growing 80% year over year? No way. No way. It's deteriorating. Exactly. It's getting worse. So for local store owners, this is the only window time that you have it, a year or 2 or 3 years, that have your sales channel, give your customer convenience. अगर customer को convenience नहीं दिया, फिर कंप्लेन मत करना कि भाई वो क्विक कॉमर्स पे जा रहे हैं और वहाँ से मंगवा रहे हैं. And trust me, you won't be able to compete with them on the price. अगर आप सोच रहे हो कि मैं नहीं, मेरा प्राइस कम होगा क्विक कॉमर्स से, नहीं. दे आर बाइंग ऑन द लेवल ऑफ नेशनल लेवल पे वो बाय कर रहे हैं. आपका मार्जिन उनका मार्जिन कंपेयर नहीं हो पाएगा. सो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन. इवन द गवर्नमेंट नोज इट. गवर्नमेंट को भी पता है कि व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ क्विक कॉमर्स. और अगर आप देखोगे ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप पैनल देखोगे, आप
कुछ ना कुछ रेड पड़ी होगी, ये बंद करवा दिया, वो बंद करवा दिया. इवन गवर्नमेंट नोज इट, द साइड इफेक्ट ऑफ क्विक कॉमर्स. ये बहुत बहुत it's not a good thing. Correct. It's not a good thing. I'll just tell you the numbers they have it in the India. There are currently more than 1.2 million kirana store which is registered. I'll say registered नहीं है वो तो बहुत सारे हैं. अगर वो 1.2 मिलियन स्टोर कम होके 5 लाख भी हो गए, अराउंड 500,000, जस्ट इमेजिन वो 6 लाख लोगों का क्या हुआ. Correct. उसके अंदर जो और 5 लोग काम करते थे उनका क्या हुआ, और उनका सेल्स जो चला गया. लेट्स टॉक द करंट सिचुएशन. जो अभी 2 लाख लोकल स्टोर बंद हो गए, उसका सेल्स कहाँ ले गए, कहाँ गया? क्विक कॉमर्स पे गया, मोस्ट ऑफ दैट. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पे उनका जा रहा है सेल्स, देन हु इज गेटिंग रिचर? ओनली जो 5 कंपनी है वही दे आर गेटिंग रिचर, और बाकी का ये डिसेंट्रलाइज होके सेंट्रलाइज हो रहा है. समझिए, यानी पूरा जो सेगमेंट है वो सुकुड़ के बस वो 5 ही जो कंपनीज है वो पैसे बना रही है. एंड दैट्स द रीजन. दे नो दैट द मार्केट इज वेरी डीप एंड दे नो दैट दे आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस. अभी सिर्फ 4% कवर किया है. दे आर लूजिंग द मनी एंड दे वांट टू लूज द मनी टू एक्वायर द मार्केट. So what if I am a kirana store owner sitting in front of you Yes. at this point where we are having a very, very, very limited time, Yes. the way quick commerce is growing and the way my store is deteriorating? Yes. What will you advise me at this point where I'll give you, see, I don't think there is a tangible difference between what quick commerce are selling online compared to what I am selling it through one-on-one thing. Yes. 20 रुपए की लेज है और 20 रुपए वहां पे भी है, मिल रहा 18 है. रुपए हाँ, होगी, हाँ, बट सामने मैं डिलीवरी फीस ज्यादा दे रहा हूँ क्विक कॉमर्स में. सो द ओवरऑल स्पेंडिंग पावर ऑफ अ पर्सन हु इज buying from quick commerce will be obviously high compared to I'm buying from the store. So what would be my first step if I am a kirana store owner today? How can I digitalize and how can I engage my valuable customers that you do not buy from this platform, you buy from my platform, because I'm giving the whole service which a quick commerce gives you the same way. Okay. So you explain me the whole Sure. periphery. Yes. So the local store, any store, किराना स्टोर, नमकीन स्टोर, मिठाई स्टोर, जो भी स्टोर है, रिटेल का कोई भी स्टोर है, they have to create their online platform. They have to create their own direct channel where the customer can order from. They have to give their customer convenience. तो पहला स्टेप आपको ये लेना है, कुछ ना करो तो कुछ नहीं, एक फ़ोन कॉल चालू करवा दो कि भाई आप घर बैठे ऑर्डर मिलेगा, मुझे कॉल कर देना. नहीं बाय करना कोई सॉफ्टवेयर, नहीं बाय करना कुछ, पहले तो कॉल उठाना चालू कर दो कि मैम सर आप आइए मत, आप हमें कॉल कर दीजिए, वी विल डिलीवर टू यू एट द सेम स्टोर प्राइस, और वो भी फ्री डिलीवरी. यानी आपके पेरीफरी में 2 किलोमीटर तक सबसे पहले आप डिलीवरी चालू करवा दीजिए. तो महंगी नहीं पड़ेगी मेरे को? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. I'll show you the strategy. कोई भी स्टोर में 1 या 2 बंदे का स्टाफ होता है. दोपहर में कोई आता है कस्टमर, नहीं, वॉक इन्स कम रहते हैं दोपहर में. यूज योर टीम कि भाई जितने भी ऑर्डर है, यू डोंट हैव टू ऑर्डर डायरेक्टली, एक ऑर्डर डिलीवर करने नहीं जाना है. जस्ट टेल योर कस्टमर कि आप 11 बजे पहले ऑर्डर कर देना, 2 बजे पहले आ जाएगा. जस्ट टेल योर कस्टमर, इवन दो इफ यू वांट टू सेगमेंटाइज इन अ 4 जोन, कि भाई आप 9 बजे ऑर्डर कर दोगे, सो एक डिलीवरी का टाइम है 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9. आप ये सेगमेंट में ऑर्डर कर दोगे, 3 घंटे में डिलीवरी आ जाएगी. ऑर्डर लिखो. अगर नहीं लिख पा रहे, इट्स नॉट स्केलेबल फॉर श्योर, इट्स नॉट, देन यू बाय द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू. करेक्ट. हैव योर ओन ऑनलाइन स्टोर फॉर श्योर, वही आपको बचा सकता है. अगर आपके कस्टमर को कोई कन्वीनियंस नहीं मिली, आपके कस्टमर को आपको कन्वीनियंस देनी पड़ेगी. अगर आप नहीं दे रहे हो, देन ऑफ कोर्स फॉर हिम डजंट मेक अ डिफरेंस इफ ही इज ऑर्डरिंग फ्रॉम अ क्विक कॉमर्स और फॉर यू. हाँ, थोड़ा सेंटिमेंट होगा, बट ट्रस्ट मी इतना नहीं है, आप सोच रहे हो इतना नहीं है. डे बाय डे वहाँ ही जा रहा है, और जा ही रहा है. उनकी सेल्स देखो, आपकी देखो, right? So you know that. So first thing you do is you have your online channel, you start giving the customer your own convenience कि भाई आप ऑर्डर कर दो, and you don't have to deliver in 15 minutes. That's a gimmick. Who needs chai patti in 15 minutes? That's a marketing gimmick.
so that they know that nobody can compete with that. ये उन्होंने बनाई चीज है, ये बनी बनाई चीज है फॉर कि भाई कोई कॉम्पिटिटर खड़ा ही ना हो, and for the convenience part. But you know, when I'm studying marketing, it works on basically two things. It's scarcity and grid. Yes. So when you create scarcity, that अगर मैं 15 मिनट में आपको मैगी 2 मिनट में ही बनती है, कभी भी 2 मिनट में नहीं बनती, when you ask anyone. Yes. So that's a scarcity thing which they are trying to inbuilt in your brain, which is known as neuro-linguistic programming, जो लोग करते हैं, right? तो चलो वो तो मैं समझ गया. तो अगर मैं देखूं दैट आज एक किराना स्टोर का ओनर यहाँ पे बैठा है और एक रेस्टोरेंटियर भी यहाँ पे बैठा है, अगर आज वो शिफ्ट करता है फ्रॉम फूड डिलीवरी ऐप और फ्रॉम क्विक कॉमर्स ऐप टू देयर ओन SaaS, so what would be the difference in their unit economics? You explain me the whole chain, that जहाँ वो 30% मार्जिन दे रहा है, वो धीरे धीरे बंद कर रहा है और खुद का चालू कर रहा है, तो प्रॉफिट कैसे कंपाउंड होगा? Oh yes, it would make a huge difference. अगर मान लो सबसे पहले मैं चालू करूँगा रेस्टोरेंट ओनर से. इफ द रेस्टोरेंट ओनर इज सिटिंग हियर, आई विल टेल देम कि आप मार्केट प्लेस पे तो रहो, मार्केट प्लेस से स्टार्ट करो, आपके ऑनलाइन खुद के प्लेटफॉर्म पे कस्टमर को डाइवर्ट करो. बिकॉज आप जो 15-20 लाख 25 लाख पहले तो एक हिसाब करो कि फूड ऐप आपसे कितना ले जा रहा है. सबसे फर्स्ट स्टेप है कुछ मत लोग कर रहे होंगे या डर से, मतलब उनको भी अंदर से लग रहा होगा मैं आई विल नॉट बी एबल टू सी द अमाउंट. हाँ, सब डिपेंडेंसी उतनी हो गई. हाँ एग्जैक्टली. फर्स्ट स्टेप रेस्टोरेंट ओनर को करना है, कल सुबह ही उठ के ब्रश करके पहली चीज करनी है उनको, एक पेन लेना है, पेपर लेना है, कैलकुलेटर लेना है, उनको पता लगाना है कि भाई एवरेज ऑर्डर कितने नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स मुझे फूड ऐप से आते हैं, एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम कितना है, मैं कितना % कमीशन मेरे से चार्ज करते हैं, एंड व्हाट्स द नंबर एनुअली आई एम गेटिंग इट. लेट्स से फॉर एग्जांपल एनुअली यू आर गिविंग द फूड ऐप इज टेकिंग अवे 25 lakhs or 20 lakhs from you. I'm not saying they are taking from you, but they are taking from you as well as your customer. So either way they are taking away 25 lakhs from your store, a single restaurant, right? क्या आप वही कस्टमर को फायदा देना नहीं चाहोगे जिसने 25 lakhs ज्यादा स्पेंड किए वही चीज बाय करने के लिए? और उन्होंने दिया क्या? इफ यू सी द मार्केट प्लेस, उन्होंने दिया क्या? एक ऑनलाइन स्टोर दिया आपका, जहां पे 1000 आपके जैसे बहुत है, पीछे डैशबोर्ड दिया और पीछे राइडर सिस्टम दे दी. तो यही चीजें बाहर रेडीमेड मिलती है. वो आप मेरे को अभी समझा. Exactly, I'll tell you about this. क्या मिलती है? Yes. That I mean, so you're building something Yes, phenomenal. exactly. So now So- you can tell Yes. the whole concept of any viewer who's listening to you would feel that he's a consultant who'll help me For to sure. retain my revenue or Yes. increase my profitability. Yes. But the thing which you are building is totally a differentiator factor. Yes. So now explain me the I'll whole tell thing. you. I'll tell you. So what we provide to the restaurant owners. So if we come to the restaurant segment, we provide the restaurant owner. हम रेस्टोरेंट को खुद की फूड ऐप वाली रेडीमेड टेक्नोलॉजी देते हैं. Correct. यानी उनकी एक ऑनलाइन स्टोर कनेक्टेड विद द डैशबोर्ड, जहाँ से आप ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे, इन्वेंट्री मैनेज करोगे, स्मार्ट टूल्स सब कुछ है वहाँ पे. योर ऑनलाइन स्टोर फॉर कस्टमर वेयर दे कैन ऑर्डर, connected with dashboard, connected with delivery system as well. So we have connected Ola, Shadowfax, Flash, Porter, all the riders in one place. So आपको बुक भी नहीं करने, यानी ऑनलाइन कस्टमर से ऑर्डर आएगा, आपके डैशबोर्ड पे एक्सेप्ट होगा, आपको एड्रेस भी नहीं डालना. The rider will come to your place, will take your thing and will give it to the customer. यानी आप आपके खुद के ही तो फूड ऐप डिलीवरी हो गए. Correct. And it's- Dependency zero हो गई. डिपेंडेंसी जीरो हो गई. तो यानी आप जो सोच रहे थे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, नो, यू हैव द ऑप्शन, जस्ट यूटिलाइज इट. सिर्फ ऐसा सोचना बंद कर दो कि भाई यहाँ पे ऑर्डर कौन करेगा, आपके कस्टमर करेंगे. यहाँ पे कस्टमर को मुझे लाना पड़ेगा. ऑफ कोर्स यू डू, आपको रेस्टोरेंट चलानी है तो लाना पड़ेगा. बिकॉज थिंक इन दैट वे कि अगर आपकी पूरी फ्यूचर आप फूड ऐप के हाथ में दे रहे हो, सेल्स की पूरी जो पाइपलाइन है सेल्स के फूड ऐप के हाथ में, दे कंट्रोल योर सेल्स. तो आपको धीरे धीरे वहाँ से जो आपकी सेल्स है कस्टमर को धीरे धीरे यहाँ डाइवर्ट करना पड़ेगा, सो दैट द कस्टमर वुड बी द लॉयल टू यू. एंड इफ यू सी द इकोनॉमिक्स ऑफ दैट, इफ आई कम टू द नंबर्स, आप साल के 10 से 12 लाख ज़्यादा कमाओगे. Of course, it will take time. It's not that it's going to start on a day one for sure.
यानी यहाँ की एक बड़ी प्रॉब्लम है रेस्टोरेंट ओनर की. इन सर्च ऑफ अ सिल्वर दे आर लूजिंग देयर गोल्ड. करेक्ट. यानी उनके पास कस्टमर आ रहे हैं जो स्टोर में पहले साल में सबसे ज़्यादा वॉक इन होता है. उनको कुछ नहीं दिया कि भाई मेरे ऑनलाइन यहाँ पे मुझे डायरेक्ट ऑर्डर करना, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना, मुझे एक्स करना, वाई करना, जी करना, कुछ उन्होंने नहीं किया. अब दे आर कंप्लेनिंग कि भाई मुझे और कस्टमर लाने हैं. जो है उसको तो पकड़ के रखो, कहीं मत जाने दो. जस्ट गिव देम द योर दिस ऑनलाइन सेगमेंट कि यहाँ से हमें डायरेक्ट ऑर्डर कीजिए सर, इट वुड बी बेटर फॉर यू एंड अस. तो पहली चीज़ आपको ये करनी है, हैव अवर सिस्टम विद इन योर रेस्टोरेंट. दिस इज अ रेडीमेड. इन इफ आई यूज द वर्ड, हम रेस्टोरेंट को खुद के जोमेटो और स्विगी बना रहे हैं. करेक्ट. इफ आई यूज दैट वर्ड. करेक्ट. यानी रेस्टोरेंट ओनर हमारी सिस्टम यूज करके खुद की एक फूड डिलीवरी ऐप विदाउट इवन हायरिंग अ सिंगल राइडर वो बना रहा है. एंड इट्स रेडीमेड एंड द कॉस्ट ऑफ नथिंग, एट द कॉस्ट ऑफ टी कॉफी. सो प्लीज चेक इट आउट. Correct. हाँ. So, I mean, the link would be in description. Yes. But that's one of the phenomenal things. जैसे जो 30% का मेरा है 10 से 12 लाख डाल रहा हूँ. हाँ. और अगर मैं ईयरली देखूँ, अगर मैं खुद का सैस या एरिया कार्ड का सैस यूज कर रहा हूँ तो मेरे को ईयरली कितना पड़ेगा? Nothing. 25,000. बस. That's it. That's the beauty of it. यानी this is the beauty of the software that if we give it, ये हमने रेडीमेड आपको दे दिया है, अब बन चुका है, we are giving it to you. Now you use it. We are not the one will pull the customer. You are the one who's going to use this platform to Correct. make you grow. So, one of the most beautiful question which I want to frame is that if I'm a local Kirana store owner, Yes. I'm not a tech savvy guy. Oh, yes. I'm 55 years old, and I want to switch to digitalization. Okay. So will I be able to understand how the UI or how the operation would be working? In area card, you mean? Yes. Oh yes, it's very easy. कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एरिया कार्ड की वेबसाइट पे जाके सिर्फ कॉल करना है और बोलना है कि मुझे क्विक कॉमर्स वाली रेडीमेड टेक्नोलॉजी दे दो. अच्छा. मुझे भी क्विक कॉमर्स बनना है, अब मुझे समझा दो कैसे करना है. वो हमारी टीम कर लेगी, कुछ नहीं करना उनको. So that's how we have managed it. Everything. It's very easy for them. What they have to do is just give the Excel file of that. आपकी जो इन्वेंट्री की Excel फाइल है हमें दे दो. We'll put into it, or we can give it to you. You do it yourself, right? And we have the AI inventory, which puts the inventory using the AI. फोटो लीजिए, नाम वाम सब कुछ वो ऐड कर देगा. सब कुछ हो जाएगा. Exactly. We have the AI with. It's a AI thing. Driven thing. It's a driven thing. Yes, it is. Correct. So कुछ नहीं करना. If you are 55 years old, if you are 25 years old, if you are 70 years old, आप कुछ नहीं करना. एरिया कार्ड की वेबसाइट पे जाओ, बोलो कि मुझे क्विक कॉमर्स वाली रेडीमेड टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे भी क्विक कॉमर्स से कम्पीट करना है, मुझे करवा दो. अच्छा. Yes, you will get it. Correct. So as per my research, India is having around 7.5 million restaurants Yes. and 12 million Kirana stores. But the surprising calculation or the stat is that only 5% are on any digital platform, which includes quick commerce or food delivery. So firstly, if we go with restaurants only, that 5% भी restaurants फूड डिलीवरी ऐप पे इंटीग्रेटेड नहीं हुए या होस्ट नहीं हुए. हाँ. तो हमारा मार्केट 95% है. हाँ. तो वो लोग को क्या करना चाहिए अभी? In the restaurant sector, I think the number would be higher on the online part because बहुत सारे online में हैं अभी, because the food app ने journey ज़्यादा ही पहले start कर दी थी. In 2018 they started building their audience in the marketplace, and especially those two companies, Zomato and Swiggy. अभी of course there is no the thing कि भाई डिजिटल तो होना ही पड़ेगा because they know अभी ऑडियंस क्या है. एवरेज अगर आप इंडियन की ऑडियंस भी देखो तो इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री. इफ़ यू सी द मीडियन एज ऑफ इंडिया, इट्स वेरी लो कंपेयर टू द अदर कंट्रीज. एंड अभी जब से UPI आया है, ऑनलाइन बाइंग इज स्पाइकिंग आफ्टर द UPI इज अ बिग हिट ऑफ इंडिया. अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन आपको होना ही इसलिए पड़ेगा
Because if you are not online, you are missing a chunk of the future audience that would be coming into your place. अभी आप ऑनलाइन नहीं हो तो एक चीज़ तो पक्की है कि भाई जो कस्टमर आपसे आ रहे हैं वो ठीक है, अभी आ रहे हैं, आएंगे, नो प्रॉब्लम, बट कहीं ना कहीं वो दूसरे, अगर मान लो आपकी रेस्टोरेंट ए है, आपकी रेस्टोरेंट पे सब आ रहे हैं कस्टमर्स, अगर फॉर अ कस्टमर दूसरे आप ऑनलाइन नहीं हो, उसको घर बैठे चाहिए, उन्होंने गलती से रेस्टोरेंट बी से ऑर्डर कर दिया और उसको पता चला नहीं यार वो ए से तो ज़्यादा अच्छी बिरयानी है, then where the customer would go to the next, like the next order would go to the restaurant B. यानी हर एक स्टोर और रेस्टोरेंट को तो ये तो करना ही करना है कि उसका कस्टमर कहीं और नहीं जाना चाहिए पहले, करेक्ट, वो तो करना ही है पहले। आपका फूड का टेस्ट क्या है वो डजंट मैटर, अच्छा है, नहीं है, खराब है, जो भी आपको पता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहाँ से पकड़ के आपको ये तो ट्राई करना ही है कि आपके कस्टमर कहीं और नहीं जाने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द कस्टमर विल गो, इट्स नॉट दैट द कस्टमर डजंट गो टू अदर प्लेसेस, दे डू एक्सप्लोर थिंग्स, बट एटलीस्ट आपका ट्राई होना चाहिए कि कन्वीनियंस पे हम ये जीत लें। सो यू हैव टू कम ऑनलाइन एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर ऑन द फूड एप्स, you are It's giving not everything. tangible. Yes, it's not. So what if tomorrow app says that 50% मैं ले लूंगा तो? हाँ, they have to. अगर कल आके फूड ऐप बोल रही है कि कमीशन हो गया 40% और 50%, अभी स्पाइक आया ना, हाँ अभी आया रिसेंटली एक परसेंटेज अमाउंट आई Yes. ऑन ट्विटर, आई सॉ द ट्वीट यस, दैट इतना स्पाइक हुआ है। स्पाइक हुआ, पैकेजिंग चार्ज आ गया, पैकेजिंग चार्ज स्पाइक हो गया, ये करते रहेंगे और आपके पास चॉइस भी नहीं है ना, आप ऐसे सोच रहे हो चॉइस नहीं है और मैं कस्टमर कहाँ से लाऊं। ऑफ कोर्स यू कैन बिल्ड योर ओन ऑडियंस, कुछ नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप कैटलॉग तो बना सकते हो ना ऑनलाइन, करेक्ट, व्हाट्सएप कैटलॉग बना लो, बोल दो अपने कस्टमर को व्हाट्सएप कैटलॉग से ऑर्डर कर दे, मैं मेरे बंदे को भिजवा दूंगा, डिलीवरी करवा दूंगा। सो एटलीस्ट इन द 2 kilometers ऑफ रेडियस एटलीस्ट स्टार्ट डिलीवरिंग योरसेल्फ, हैव योर ओन थिंग, हैव योर फ्यूचर इन योर ओन हैंड। और अगर मान लो व्हाट्सएप कैटलॉग इट्स नॉट अ स्केलेबल आइडिया, कम टू अस, वी हैव द सॉल्यूशन, द एंटायर सॉल्यूशन, we'll make you the food, like we'll give you the ready-made technology of a food app directly to you in one day. You'll be running like them without even hiring a single rider. तो आपको आपकी ऑडियंस पे तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, और फिर आप कंप्लेन ही करते रह जाओगे कि भाई अभी पहले 25 था, 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 50 भी होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, you will still be dependent on them. So you have to take step 1. I'm not saying वहाँ से आप रिमूव हो जाओ, but yes, you have to be on marketplace and you have to have your own segment as well. So don't you think that the customer retention, for example, if I'm ordering from food delivery, तो वहाँ पे मेरा retention उतना नहीं है, क्योंकि हाँ. अगर आज मेरे को एक पिज्ज़ा 30% ऑफ में दे रहा है तो मैं वहाँ से ऑर्डर करता हूँ, Yes. और दूसरी बार मेरे को दूसरा पिज्ज़ा 40% में दे रहा है, तो भले 30% का टेस्ट अच्छा था, हाँ. बट मैं थोड़ा क्यूमुलेटिव होऊंगा फॉर द अमाउंट विच आई एम स्पेंडिंग। Oh yes. तो अगर वो खुद का सास करता है तो रिटेंशन उसका बढ़ जाएगा या कम होगा? नहीं बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बिकॉज द थिंक इन दैट वे, वो यूनिवर्सल रहेगा। हाँ वो तो वो सेम है ना, वो रेस्टोरेंट आ रहा है या घर पे मंगवा रहा है, इट्स द सेम अमाउंट, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पेंड कर रहा है तो इट्स फॉर जस्ट द डिलीवरी फीस दैट यू आर टेकिंग इट, तो वो तो बढ़ ही जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप बोलते हो आपके ही कस्टमर को कि भाई मैं ऑनलाइन हूँ, फूड ऐप पे ऑर्डर कर दे डायरेक्ट, अगर तुझे होम डिलीवरी चाहिए तो फूड ऐप पे डिलीवरी ऑर्डर कर दे। योर कस्टमर गोज टू द फूड ऐप, गेट्स डिस्ट्रैक्टेड वेयर द कूपन्स आर, ऑर्डर्स फ्रॉम द अदर रेस्टोरेंट्स, करेक्ट, एंड देन दे बिकम देयर रेस्टोरेंट। यानी आपके ही कस्टमर को आप बोल रहे हो कि भी दूसरी ऑर्डर से इनडायरेक्टली ऑर्डर कर ले। सो द मेन डिलेमा विच द रेस्टोरेंटियर्स आर हैविंग इज दैट वो लोग कह रहे हैं हम डिजिटल है तू यहाँ से ऑर्डर कर दे, बट वो जो 250 रुपए की चीज है वो वहां पे मेरे को 100 रुपए या 150 में मिल रही है, हाँ. मैं भूल जाऊंगा मैंने तेरे को फोन किया था। Exactly. इट हैपेंड सेम विथ मी। Hmm. I was ordering a sandwich from Friesland. They told me that अभी मतलब मेरे को उसको एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देनी थी, मेरे को ये चीज चाहिए। He told me that यहाँ पे आप लिख दो। तब मेरे को बीच में होको दिखा when I searched। तो होको की जो सैंडविच थी वो मेरे को उससे सस्ती में पड़ रही थी, तो डायरेक्टली ऑर्डर्ड फ्रॉम होको। मेरे को उतना फर्क नहीं लगा, चलो टेस्ट में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट प्राइस सेंसिटिव काफी था।
सो ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने Yes. नोटिफाई किया, जो बहुत सारे लोग भूल जाते, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो दैट दिस कैन बी अ थिंग. यस, एंड इट इज अ ह्यूज थिंग. 50% आप देखो तो यही तो हो रहा है. 50% हो रहा है. More than that, I'll say more than that. Even let's say for example, I'll give you a psychology, UI psychology. पहले फूड ऐप आपके लोगो लगाती थी, बहुत पहले आपके अच्छा. लोगो लगते थे ऊपर. okay, हाँ, खुद के लोगोज होते थे. तो यू गेट कनेक्टेड विद द लोगोज कि भाई ये ब्रांड है, मैं यहाँ से ऑर्डर करूँगा, ये मेरी ब्रांड है. हर एक की एक 5, 7, 10 ब्रांड होती है, वहीं से ऑर्डर करते हैं, राइट. सो पहले लोगो थे, लोगो हटा लिए. अब क्या हो गया, अब लोगो ही जैसे मैं हटा लूंगा, क्या होगा, मेरी ब्रांड पोजीशनिंग ही नहीं होगी. आपकी ब्रांड पोजीशनिंग नहीं हुई. मैं नया हूँ मार्केट में, मैं क्या करूँगा, मुझे अच्छे फोटोज चाहिए प्रोडक्ट के, ज़्यादा रिव्यूज चाहिए, 5 स्टार रेटिंग चाहिए, कुछ थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज चाहिए, एंड दैट्स इट. आई कैन किल योर बिजनेस इवन दो यू आर अ ब्रांड. ऑनलाइन पे तो मैं ही प्रीमियम लग रहा हूँ ना. इट्स नॉट जस्ट फॉर द लोगो शेक ऑफ थिंग, बट यस इट्स अ थिंग. अगर मैं छोटा ब्रांड होके भी मैं बड़ा बता सकता, लाइक आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ दैट आई एम अ ह्यूज पर्सन एंड आई एम अ really beautiful restaurant or I'm a really powerful, like you know, into this industry back then. Reviews ला दिए, photos डाल दिए, that's it. Customer गया food app पे. Customer जब food app पे जाता है, think the psychology how the mobile is, most of the order, जितने भी आप फ़ोन से मंगवा रहे हो, फ़ोन की साइज़ क्या है, 6-7 इंच. 6-7 इंच में 3 या 4 स्टोर दिखते हैं, वो 10 बार स्क्रॉल करेगा, यानी उसने 30 रेस्टोरेंट को स्क्रॉल किया. ये आप मेरे को साइकोलॉजी डिटेल में बताओ, दैट एक फोन की साइज क्या आपने बोली, 6 या 7 इंच होती है. हाँ. दिस इज अ वेरी IP टॉक व्हिच वी आर करंटली हैविंग, राइट. तो मेरे फोन की साइज 7 इंच है. 6 या 7 इंच, 6 इंच पकड़ के चल लो, आपको 3 स्टोर दिखेंगे. और मैं एक जगह से ऑर्डर करने जा रहा हूँ, तो मेरे को 3 स्टोर दिखेंगे. 3 स्टोर दिखेंगे. एंड व्हाट्स द एवरेज स्वाइप रेशियो व्हिच अ ह्यूमन डज व्हाइल सर्फिंग ऑन द प्लेटफॉर्म? 5 to 7. 7 swipes. हाँ, यानी 5-7 पे तो 7 swipes. So how many restaurants is he surfing then? Then probably 20, 21. में अगर 3 होगी, हाँ, 21. तो 21, 25 या 30 मैक्स. हाँ. और पूरे अहमदाबाद में कितनी रेस्टोरेंट्स, यानी पूरी सिटी भी ले लो, पूरी सिटी में कितनी रेस्टोरेंट्स होती है? Thousands. और कितनी दिखाई जाती है? 20. अब वो दिखाने का कंट्रोल किसके पास है? फूड ऐप के पास. अभी फूड ऐप क्या करेगा? पैसे दो वरना सेल्स नहीं दूंगा कस्टमर को. आपकी सर्च पे भी, अगर फूड ऐप में अगर कस्टमर आपको डायरेक्ट सर्च भी कर रहा है विथ योर रेस्टोरेंट नेम, इट विल शो योर कॉम्पिटिटर्स नेम इफ द कॉम्पिटिटर इज गिविंग द मनी टू देम. यानी सर्च पे भी आप नीचे आ रहे हो, वो ऊपर आ रहा है. और अगर कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता, वो भी उसके 5 या 7 ब्रांड में है, तो कस्टमर विल क्लिक ऑन दैट. ब्रांड ए की वजह बी में उसको कूपन दिख रही है, तो वो बी पे भी जा सकता है, क्योंकि वो भी तो उसकी ब्रांड बी थी. सो दिस इज अ साइकोलॉजी दैट दे जस्ट हैव 1 6 inch of screen, 3 restaurant coming in, people usually will scroll 5 or 6 times and then they get settled. Correct. और उसको that's one of the biggest thing which I also learned, Yes, that yes. this psychology was very important, that Yes. अगर कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो उसके पास, अगर आप रेस्टोरेंटर हो और आप उसको बता रहे हो दैट आप ऑनलाइन देख लो, तो आप आपके कस्टमर्स को ना बोल रहे हो. That's the simple direct logic. You are distracting your customer. I don't think it's distracting, because if I'm getting सेम थिंग, चलो टेस्ट में मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, बट मेरा स्पेंडिंग पावर उतना नहीं है, तो आपका कस्टमर चला गया. Oh yes, every time a restaurant owner or any restaurant owner, every time when restaurant owner says that, और उसके ऑपरेशन में वो डाल रहा है कि भी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप फूड ऐप पे जाइए, उतनी बार आप ध्यान रखना, आपके ही कस्टमर को आप हाई लाइकली चांसेस दूसरी रेस्टोरेंट यानी आपके ही कॉम्पिटिटर के पास भेज रहे हो आप, फॉर श्योर. Correct. मानो या ना मानो, if you think of the angle, it is happening. Correct. So on to that was one of the most intellectual, Yes. insightful, knowledgeable conversation which we had. Mm-hmm. But I'm having one of the एक final question है मेरा, हाँ sure. that आज से 5 साल बाद
ये एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म है जो क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी वो सब है, कि वो रिप्लेस हो जाएंगे थ्रू AI, व्हाट्सएप ऑर्डरिंग और ऑटोमेशन, तो वो लोग उतना स्केल कर देंगे दैट जो लोग आइदर खुद का SaaS नहीं बना रहे या खुद का डिजिटलाइजेशन में वो ऑनबोर्ड नहीं हो रहे, नहीं हुए, वो दे विल बी स्वेप्ट अवे. सो व्हाट डू यू थिंक विल द फ्यूचर बी फॉर एनी FMCG brand after 5 years? So if you're talking about FMCG brand, right? FMCG brands को of course quick commerce एक platform देता है to go on that and get the audience which is ready made there. क्विक कॉमर्स तो बढ़ने ही वाला है, पावरफुल होने ही वाला है, देयर इज़ नो स्टॉप ऑन दैट. वो हाईवे पे चढ़ चुका है, उसकी गाड़ी रोल हो चुकी है, सो देयर इज़ नो स्लोइंग पॉइंट. द पार्ट इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ अभी अगर आपने बताया FMCG ब्रांड ऑन क्विक कॉमर्स, अभी वो भी कहीं ना कहीं क्विक कॉमर्स को हेट करने लगे हैं, द ब्रांड्स विच आर ऑलरेडी ऑन क्विक कॉमर्स, क्योंकि अभी क्विक कॉमर्स भी खुद की ब्रांड ला रहा है विद द FMCG ब्रांड. दे हैव द डेटा कि ये सिटी में ये कितने गेहूं जाते हैं, ये सिटी में कितनी दाल जाती है, कितने जाते हैं. सो द FMCG ब्रांड विच आर लिस्टिंग ऑन, विच आर गेटिंग लिस्टेड ऑन द क्विक कॉमर्स, वो जो है वहाँ पे अभी FMCG को पता है कि मुझे सस्ता कितना बेचना है. मतलब उसके पास डेटा वो भी है दैट यहाँ Yes. ये ज्यादा जा रहा है तो इसको ना बोल के मैं खुद प्रोडक्शन बाहर का लूं बट मैं बेचूं. इट्स हैपनिंग, ये हो रहा है. ये अच्छा. क्विक कॉमर्स में भी हो रहा है, ये फूड एप्स में भी हो रहा है. इफ आई टेल यू द फूड एप्स, आई जस्ट गिव यू द 2 names, स्नैक एंड बिस्ट्रो. देयर इज ऐप, इट्स ओन्ड बाय Zomato एंड स्विगी. वो क्या कर रही है, वो खुद का ही तो क्लाउड किचन है. यानी जो प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेस, जो फूड ऐप आपसे डेटा ले रही थी, यानी आपको लिस्ट कर रही थी ऑनलाइन, आप उस पे थे, उनके पास डेटा मिल गया, एंड फ्रॉम यूजिंग द सेम डेटा दे आर ओपनिंग देयर ओन क्लाउड किचन्स. उनको पता है, आपको नहीं पता. एज अ रेस्टोरेंट ओनर आपके पास डेटा ही नहीं है, एंड डेटा इज अ ऑयल. आपको ये नहीं पता कि फ्राइडे पे सबसे ज़्यादा क्या जाएगा, सैटरडे को क्या जाएगा. हाँ ठीक है, अंदाजित पता रहता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता होता. कौन से एरिया में क्या जा रहा है उनको पता है. करेक्ट. तो दे विल मेक देयर द क्लाउड किचन अकॉर्डिंगली. दैट वुड बी अ डायरेक्ट प्रॉफिटेबल मशीन. उनको पता है कि भाई फ्राइडे को ये चीज़ नहीं बनानी, थर्सडे को ये कम बनानी है, सुबह में ये ज़्यादा जाएगा, शाम को ये ज़्यादा जाएगा, ये एरिया में ये रखो, ये एरिया में ये रखो. दे हैव द डेटा. हाँ एग्जैक्टली दैट. एक जैन के एरिया में बिरयानी नहीं चलने वाली. यू गॉट इट. आई एम हैविंग अ डेटा, सो आई एम नॉट हैविंग एनी टाइम और रिसोर्स फॉर टेस्टिंग इट. Yes. And the restaurant owner will have to collect the data to survive for the future. करेक्ट. The data is the new thing that the restaurant owner should start collecting from the day to day. कि cost, मेरी सबसे ज़्यादा हिट चीज़ क्या है, कब जा रही है, कब नहीं जा रही, कब मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो कब कितनी देर तक जाती है, फिर स्लो हो जाती है, कितना स्लो होती है, कौन से एरिया में क्या चीज़ ज़्यादा जा रही है, नहीं जा रही, क्या हो रहा है. यू हैव टू हैव योर डेटा. आपका हाईएस्ट स्पेंडिंग कस्टमर, रेस्टोरेंट को बोलूँ कि आपके 10 हाईएस्ट स्पेंडिंग कस्टमर के नाम बोल दो, नहीं पता होगा. they would not know it. So can you imagine, आप बांधने चले हो रेस्टोरेंट और आपका फ्यूचर, आपके हाईएस्ट 10 स्पेंडिंग जो कस्टमर है उसके नाम भी नहीं मालूम, उनके नंबर भी आपके पास नहीं है. फेस वैल्यू से हाय हेलो हो जाता होगा. ओ हाँ, यू विल बी नोइंग बट यू आर नॉट हैविंग एनी डेटा. एग्जैक्टली. इफ आई टेल यू जस्ट गिव मी द डेटा ऑफ 50 टॉप कस्टमर्स, और अब मैं बताऊं कि आपको पता है ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट 1, ये जो मिठाई है सबसे ज़्यादा आपकी कौन लेता है, ये मिठाई सबसे ज़्यादा कौन से कस्टमर बाय करता है ईयरली. They won't have the data. Start collecting. Start building a system that you can collect the data. So do we also give the whole demographic if they use area cart? I mean, Oh yes, we do. Everything. We do everything. You will get the data of your customer. We do give the data of the customer, which customer is spending on what, how much they have spent, what the number of order they have did, and yes, we give it. so I mean, it was one of the most insightful conversation where I also didn't felt that ये कहाँ मतलब जा रहा है. मैं उतना indulge हो गया था इसमें. So I guess I need a second podcast for your whole journey. Yep. That you know how did you started, market gap क्या था और कैसे ये born हुआ. But आपने जो अभी insights दी, जो फ्यूचर में किसी को रेस्टोरेंट खोलनी है या किसी का स्टार्टअप FMCG में है, उसके लिए एक ये नोटबुक हो जाएगी.
Yeah. that कैसे what would be the initial steps which they have to form through which उनकी accountability में उतना ज़्यादा burning amount ना हो. For sure. So thank you so much, Nirav bhai, Sure, for Dhruvi coming ji. on my show. Sure, And it was one of the absolutely, Dhruvi ji. most, intellectual conversation Thank you which for we calling had. me. Thank you and for it calling was me. a pleasure. Thank you so much. Thank you for that. calling Thank me. Thank you, Cut. bro.